بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل از ہم صوتیات یعنی فونیٹکس کے بارے میں فونیٹکس کے بارے میں کچھ آگاہ ہو چکے ہیں اور کچھ فونیات یعنی آوازوں کی گروہ بندی کے بارے میں روشناس ہو چکے ہیں۔ آج ہم مارفیمیات یا صرف و نحو کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مارفیمیات یعنی صرف میں ہم لفظ کی بناوٹ کے ہیں اور اس کی ساخت کو دیکھتے ہیں کہ الفاظ کی پہلی دفعہ تشکیل کیسے ہوئی اور یہ اپنی صورت کو کس طرح بدلتے رہتے ہیں۔ الفاظ ہمیشہ حروف سے ہی تشکیل پاتے ہیں اور یہ بنیادی الفاظ افعال کی صورت میں ہے، اشتقاق کی صورت میں ہے، الفاظ کی صورت میں ہے، اور ان لفظوں کو ہم بدلتی ہوئی صورت کے ساتھ جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی حیت کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا جیسے کوئی بنیادی لفظ ہے، اس سے پہلے کوئی لفظ لگائیں جسے سابقہ کہتے ہیں، تو اس کی معنی کیا بن جاتے ہیں۔ اور اگر لفظ کے بعد بنیادی لفظ کے بعد لاحقہ لگائیں تو اس لفظ کے معنی میں کیا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ سابقے اور لاحقے لگانے سے یہ مشتق لفظ کیسے بنتے ہیں اور ان میں کیا معنوی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ لفظ میں کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اور زمانے آپ جانتے ہیں کہ 3 ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ اور زمانہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کس طرح اپنی حیت تبدیل کرتے ہیں، اور یہی لفظ یعنی ایک فعل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فعل کا لفظ بنیادی لفظ کس طرح زمانہ حال میں اپنی صورت کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمانہ مستقبل میں تھوڑا وہ ویٹ فعل کر لیں سر، وائز آ رہے ہیں سر، تھوڑا ویٹ کر لیں، سگنل کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ تھوڑا ویٹ کر لیں۔ وہ فعل مستقبل میں کس طرح جو ہے اپنی حیت کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو سیغوں کی تبدیلی کے ساتھ لفظ میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سب تبدیلیاں، یہ سب ساخت، یہ سب بناوٹ، یہ لفظوں کی تشکیل، یہ سب علم صرف میں شامل ہیں۔ اب ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں، نام ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک سابقہ لگاتے ہیں۔ نام تو بذات خود نام ہی کو کہا جاتا ہے۔ اسم ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، اور کسی چرند پرند یا کسی سبزہ اور درخت، کسی فصل کا نام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی سابقہ لگائیں تو وہ نام کا لفظ اپنے معنی تبدیل کر لیتا ہے۔ مثلا جیسے
हम नाम के साथ लगाते हैं नेक नाम। अब देखें ये लफ्ज जो है मानी इसके बदल गए, इसके साथ एक साबका लगा, साबके से नाम के साथ जब नेक का लफ्ज इस्तेमाल किया, नेक का साबका लगा, तो उसके मानी अक्सर बदल गए। पहले महदूद हद तक नाम से तफहीम होती थी, मगर अब एक मखसूस हद तक एक मखसूस मानी जो है वो उससे अखज़ होते हैं। सर्फ में ये देखा जाता है कि साबकों से क्या तब्दीली होती है मानी में, और लाहकों से क्या तब्दीली होती है। अब यही नाम है, और इसी नाम को अगर उसने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसके मानी अच्छाई में ही आएंगे, जाहिर बात इसमें सिफ्त में आएंगे। बुरा नाम ले लिया, जिस तरह बदनाम हम कहते हैं, तो बदनाम आएगा, या नाम नेहाद, अब नेहाद जो है वो लाका है। तो इस तरह ये मानी असल लफ्ज़ जो है वो तब्दील करते रहते हैं। अगर नाम के बाद वर लगाए तो नाम वर हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा। पहले तो नाम ऐसे समझें कि इसमें नकरा की सूरत में था, अगर नाम वर होगा तो एक लिहाज से वो मशहूर हो जाएगा, तो वो उसे है तो इसमें नकरा ही, लेकिन उसकी जो मानवी हैसियत है वो बढ़ जाती है। तो नेक नाम और नामवर ये साब के और लाहके की सूरत में नाम के साथ जो है वो मानवी तब्दीली जो है वो वाक़ होती है, आप देख चुके हैं। तो ये मानवी तब्दीलियाँ ही दरअसल लफ्ज़ों की तब्दीलियों को माहिर लसानियात देखते हैं कि किस तरह ये ज़ुबान में ये छोटी मोटी तब्दीलियों से लफ्ज़ों के मानी क्या से क्या हो जाते हैं, और जब हम इनको इबारतों में इस्तेमाल करते हैं, तहरीरों में इस्तेमाल करते हैं, शायरी और नशा परदाजी में इस्तेमाल करते हैं, तो यही अल्फाज ही सतही मानी देते हैं, बलीग मानी देते हैं, और बहुत गहराइयों में इनसे मानी अखज़ किए जाते हैं। तशबीहात और इस्तारात की सूरत में अगर इन्हें इस्तेमाल करें तो ये मज़ीद जो है वसअत के साथ इनके मानी अखज़ होते हैं। अब हम ऐसे लफ्ज़ भी देखते हैं ज़ुबान में कि वो बुनियादी तौर पर मखलूत होते हैं, दो लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं, या दो अज्जा से मिलकर बने होते हैं। कुछ अज्जा तो ऐसे हैं जो बेमैनी हैं, बेमैनी अज्जा से बामैनी लफ्ज़ का बनना ये भी सर्फ के ज़ुमरे में आता है। मसलन दा एक लफ्ज़ है, बामानी है, इसका क्या माने है, कोई माने नहीं, लेकिन दा को अगर तकरार के साथ बोलेंगे दा, तो ये एक बामानी लफ्ज़ बन जाता है। अगर इसी तरह बा को देखें तो बुनियादी तौर पर बा बेमानी लफ्ज़ है, मगर इसकी तकरार करेंगे तो ये बाबा बन जाएगा, तो बाबा बामानी लफ्ज़ बन गया। ये तो छोटे से रुकन हैं जिसको हम फुनीमी कहते हैं, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं, और ये छोटी सी उनकी इकाइयाँ हैं किसी लफ्ज़ की, और इनको अगर ज़्यादा वसी मानों में देखें तो बामानी अल्फाज के भी ऐसे मुरक्कब अल्फाज हैं जो जाकर एक मायना देते हैं। किसी एक महीने में दो लफ्ज़ों का एक महीना जो है वो निकलता है। मसलन जब हम देखते हैं पंजाब, एक लफ्ज़ है पंजाब, पंज महीना पाँच, आब महीना पानी, पंज आब। अब पंज आब बुनियादी तौर पर दो लफ्ज़ हैं, मगर हम उससे मानी सिर्फ एक खिते का लेते हैं, एक सूबे का लेते हैं। तो ये लफ्ज़ों पे गौर ये सर्फ का काम है। तो सर्फ की रूह से लफ्ज़ों को देखा गया कि पंज अलग कर लिया, आब अलग कर लिया, तो गोया ये पंजाब का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के मुरक्कब से बना, और इसमें माना पाँच और है, आब और है बुनियादी तौर पर, तो उससे मुराद सिर्फ खिता पंजाब है। ऐसे नहीं कि कोई पांच पानी कहीं खड़े हैं, या पांच पानी किसी बर्तन में रखे गए हैं, या कोई पांच और जो है ना जी तालाब है किसी जगह पर, उनका नाम पांच पानी है। इससे मुरादी मानी खिता पंजाब यानी सरजमीन पंजाब, जिसे सूबा पंजाब कहते हैं। तो ये मानी इसके
مخصوص ہو گئے، انہیں مخصوص معنوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بالکل بلوچستان ہے، بلوچ ایک الگ لفظ ہے، قوم ہے، استان میں جگہ، بلوچ کی جگہ۔ پاکستان الگ لفظ ہے، پاک الگ ہے، استان الگ ہے، پاک لوگوں کی جگہ۔ اور بے عین ہی گلستان، گل کا معنی پھول، استان کا معنی جگہ، یعنی پھولوں کی جگہ، یعنی باغ۔ تو گل الگ ہے، استان الگ ہے، دو لفظ مل کر مرکب سے ایک خاص معنی اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف کی صرف کا وظیفہ ہے اور علم صرف ہے۔ بوستان ہے، بو یا بو میں نے خوشبو، جہاں پہ خوشبو آتی ہے، خوشبو کی جگہ، اس سے مراد بھی گلستان ہے۔ یہ مرکب الفاظ ہیں۔ مرکب الفاظ کی مدد سے، مرکب الفاظ کو دیکھ کر کسی زبان کے بارے میں رائے کام کرنا کہ یہ کس طرح مرکب یا دو لفظوں کو ملا کر ایک معنی کے لفظ بنائے گئے۔ یہ کسی نے بیٹھ کر کوئی گھڑے نہیں ہیں کسی زبان دان میں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنے ہیں۔ یہ صدیوں کے گزرنے کے بعد کسی بھی زبان بولنے والوں کے تجربات اور تال میل اور بات چیت سے ان لفظوں کا وجود جو ہے وہ اظہار پذیر ہوا اور پھر لینگویج کا یہ حصہ بن گئے۔ تو ہر زبان کے الفاظ کو صرف جاننے والے ماہر لسانیات اس طرح باریکی سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم پرانے ڈکشنریوں کو، انگلش ڈکشنریوں کو دیکھتے ہیں تو ان انگلش ڈکشنریوں میں ہمارے کچھ اردو بھی ہیں، ان میں بھی یہ اہتمام ہے، لیکن ہر ایک لغت میں نہیں ہے۔ تو پرانے ڈکشنریوں میں ہم ورڈ کی اوریجن کے بارے میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ان لفظوں کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس زبان سے وہ الفاظ آئے ہیں، مثلا کوئی لاطینی زبان ہے یا یونانی زبان ہے یا کوئی اور فرانسیسی زبان ہے یا کوئی قدیم لفظ ہے، تو ایسے لغت میں ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے لغت کے ہر لفظ کو غور سے دیکھا گیا، یعنی علم صرف کی روح سے ان کو جانچا گیا۔ اس جانچ پڑتال کے بعد ان لفظوں کا تعین کیا گیا۔ یہ ماہر لسانیات نے اتنا سر کھپایا اور جگر کاوی کی، پسینہ بہایا اور محنت مسلسل کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچے کہ کون سا لفظ کس زبان کا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے حصے کیا ہیں، اس کا تلفظ کیسی ہے۔ یہ سارے علم صرف سے متعلق ہے۔ جب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے غور و خوض کے بعد، تو اس طرح الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں، یعنی معنی فہمی میں آسانی ہو جاتی ہے، اور زبان دانی کے حوالے سے انسان ان الفاظ کی پہچان کے بعد زبان دانی پر دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمانے کے اعتبار سے لفظوں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے ہم ایک فعل کو منتخب کرتے ہیں، ایک فعل کا ایک لفظ ہے جو ہمارے لکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا ایک فعل ہے لکھنا۔ اردو میں فعل کی پہچان یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں عموماً نون الف نا آتا ہے، یا لکھوانا جس طرح ہے، لکھنا یا لکھوانا۔ اب ہم لکھنا کو دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف صورتوں میں، مختلف زمانوں کی صورت میں یہ لفظ کس طرح تبدیل ہوتا ہے اور کیسے کیسے صورتیں بدلتا ہے۔ بنیادی لفظ فعل ہے، وہ ہے لکھنا۔ تو یہ فعل زمانے کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کو فعل ماضی میں یہ کیسے ہوا، کیسے تبدیل ہوا۔ فعل ماضی میں لکھنے سے ہم دیکھتے ہیں جب کہ اس نے کتاب لکھی،
लिखना से लिखी में बदल गया। वो खतूत लिखता था, ये तो सादा माजी में हमने कहा ना, उसने किताब लिखी। अब खतूत लिखता था, ये माजी बईद में, वो माजी बईद में जब हम लिखते हैं तो वहां लिखता हो गया। तो उसने किताब लिखी, इसका मतलब है सादा माजी में कब लिखी, 2 साल पहले लिखी, 1 साल पहले लिखी, 6 माह पहले लिखी, ये मालूम नहीं है, सादा माजी है। लेकिन माजी बईद में काफी दूर अरसा पहले जब उसने वो खतूत लिखता था, अब ता लिखता आ गया, तो माजी बईद में भी इसकी सूरत बदल गई, माजी में इसकी सूरत बदल गई। टेंसेस 4 हैं, हर जो है जमाने में 4 है अमूमन। हम कहते हैं कि इकबाल नज़्म लिखता था, उसका मतलब है माजी बईद हम बोल रहे हैं, लिखता को बोल रहे हैं। या इकबाल ने नज़्म लिखी, अब लिखी जो है वो जमा की सीगा में ये बदल गया। इकबाल ने नज़्म लिखी वाहिदा है, और इकबाल ने नज़्म लिखी तो जमा की सीगा में लिखी बन गया, पहले लिखी बन गया फिर लिखता बन गया। ये लिखने से ही सारी सूरतें इसकी ज़हूर पजीर हो रही हैं। और इसको अगर हम माजी में इस्तेमाल करें या जारी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन फेल माजी जारी में इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम ये कहते हैं कि इकबाल नज़्में लिख रहा था, लिख रहा था, वहां सिर्फ लिख आया, लिखता भी नहीं आया, लिखी भी नहीं आया, लिखी भी नहीं आया, बल्कि सिर्फ लिख की सूरत में आया, यानी मुख्तसर सूरत है, लिखना की मुख्तसर सूरत है, नून उस नून लिखना उससे उड़ गया, बिल्कुल फेल अमर की तरह। अब देखें, हम कहते हैं कि फेल हाल में अच्छा कैसे है। फेल हाल में ये लिखना अपने शक्ल को कैसे बदलता है। कहते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद नज़्म लिखता है। अब लिखता है, लिखता तो फेल माजी बईद में भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहां था या उसके आखिर में इमदादी फेल के तौर पर, इमदादी फेल वहां पे बदल गया, लफ्ज लिखता भी वहां पर भी लिखता ही आया, और फेल हाल में भी लिखता ही रहा, शक्ल नहीं बदली, लेकिन इमदादी फेल की शक्ल बदल गई। वहां लिखता है, जहाँ लिखता है, और वहां लिखता था, लिखता लिखता बराबर, लेकिन इमदादी फेल है और था ये बिल्कुल अलग हो गए इससे एक दूसरे से। अच्छा, अगर इसको हम जो है फेल हाल जारी में इस्तेमाल करें तो कैसे होगा। अमजद इस्लाम अमजद नज़्म लिख रहा है, अमजद इस्लाम अमजद नज़्म लिख रहा है, तो इसका मतलब है लिख रहा था या लिख रहा है। तो फेल हाल में, फेल हाल जारी में और फेल माजी जारी में यकसा ही इसकी सूरत हाल रही, लिख लिख ही रहा, फेल अमर की सूरत में इसमें तब्दीली नहीं आई। ये गौर करना होता है कि ज़ुबानों के एतबार से लफ्ज़ कहाँ कहाँ अपनी सूरत को बदलते हैं। और अगर मुस्तकबिल में हम इसे देखेंगे तो मुस्तकबिल में हम ये इसी लफ्ज़ को लिखने को देखेंगे कि अमजद इस्लाम अमजद नज़्म लिखेगा। अब लिखता, लिख, लिखे, लिख, लिखी या लिखी वो नहीं रहा, अब आ गया लिखे। अब आप देखें ना, तब्दीली तो आई, तब्दीली आई, इसमें लिखे आया, तो लिखने से लफ्ज़ जो है लिखे में बदल गया। ये मुस्तकबिल में इसकी सूरत जो है वो वाज़ेह हुई। और ये इसने कैसी सूरतें बदली, मुख्तलिफ सूरतें बदली। अब अगर लिखना, लिखना से लिखता, लिखी, लिखे, लिख, ये सब तब्दीलियां ज़माने के एतबार से किसी लफ्ज़ में वकू पजीर हुई, और ये सब कवायद की रूह से इल्म सर्फ ही का वजीफा है, और किसी लफ्ज़ को मुख्तलिफ पहलुओं से जांचा जाता है कि वो किस तरह उससे मश्तक जो है वो बनते हैं, अखज़ किए हुए लफ्ज़ बनते हैं। इसी लिखना को अभी हम फेल अम्र की सूरत में देखेंगे तो वो लिख की सूरत में आएगा, नून लिखना फेल अमर में उड़ जाएगा। हम कहते हैं जी खत लिख,
किताब लिख, शेर लिख, मजमून लिख, लिख। अब लिख आया सर, लिखने से बदल गया लिख। तो अगर इसको फाइल की सूरत में इस्तेमाल करें इसी लफ्ज को, लिखने से फाइल की सूरत में, तो ये लफ्ज बन जाएगा लिखारी, लिखारी। अब लिखारी की सूरत इसकी तब्दील हो गई जनाब, लिखने से लिखारी बन गया, ये उसकी फाइली सूरत है लिखारी। लिखारी का मतलब है लिखने वाला, अहले कलम जो लिखता है। तो फाइल में बदल गया, लफ्ज हुई लिखना है, तो ये सूरतें बदल रहा है। एक और चीज़ है, उसकी हम सिफाती कैफियत देखते हैं इसी लफ्ज की, हम कहते हैं लिखाई। लिखाई देखो, हमजा ज़ेर ई आई, लिखा भी, और हमजा ज़ेर लिखाई, तो ये इसकी सूरत बदल गई। ये क्या है, ये लफ्ज के ऊपर गौर व फिक्र करना है। अगर तो वो वाहिद है, अगर तो वो मुरक्कब है, किसी भी सूरत में है, मुख्तलिफ पहलुओं से ज़ुबान की लुगत में इस्तेमाल होने वाले जितने भी अल्फाज हैं उनके ऊपर गौर व खौज किया जाता है। इल्म सर्फ इन्हीं अल्फाज के साथ, उनके मुताले के साथ डील करता है। और ये इसका दूसरा, इसको हम मार्फिमियात कहते हैं जनाब। ये मार्फिमियात है, अंग्रेजी लफ्ज़ है मार्फिमियात। मार्फिमियात में पहला जुज जो है वो सर्फ का है, क्योंकि ये ताल्लुक़ रखता है सिर्फ लफ्ज़ से, जबकि मार्फिमियात का दूसरा जुज है नहव। नहव, इल्म नहव। नहव क्या है, नहव बुनियादी तौर पर लफ्ज़ से एक कदम आगे बढ़कर जुमले की साख्त के ऊपर जो है वो बहस करता है, उसका मुताला करता है कि किसी ज़ुबान में जुमले कैसे बनते हैं। इसके ऊपर हम पहले भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्लास में भी हमने इसके ऊपर कुछ पढ़ा था। तो इसको, नहव को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा सबक इल्म सर्फ के बारे में या मार्फिमियात के बारे में था। अगर ये पूछा जाए कि मार्फिमियात के कितने अज्जा हैं, तो मार्फिमियात के दो अज्जा हैं। पहला जुज इल्म सर्फ, दूसरा जुज ये इल्म नहव। तो उसका बुनियादी जुज कौन सा है? बुनियादी जुज उसका है इल्म सर्फ, मार्फिमियात का। क्योंकि अंग्रेजी इस्तिलाहात है हमारे लेसन में, हमारे जो कौन से बताए मार्फिनियात के अज्जा, सर रिपीट करें। हमारे सिलेबस में इंग्लिश का लफ्ज़ मार्फिमियात इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा आपको इसी इंग्लिश इस्तिलाह की सूरत में आपको इसकी तशरीह करनी होगी, और आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे इसी अंग्रेज़ी इस्तिलाह की रोशनी में। उर्दू या अरबी के जो इसके मुतबादिल अल्फाज हैं वो यही सर्फ व नहव हैं जो मदारस में इनको पढ़ाया जाता है, और यही लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आज का सबक इसी हद तक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक मुख्तसर सा लेक्चर है। मार्फिनियात के आपने दो अज्जा बताए हैं, वो रिपीट तो कर दें। अज्जा, मार्फिनियात के अज्जा। मार्फिनियात के यही दो अज्जा हैं। पहली जुज़ जो है उसकी ये इल्म सर्फ है। इल्म सर्फ वो है जो लफ्ज़ को डिस्कस करता है, जो लफ्ज़ के ऊपर गौर व फिक्र करता है, जो लफ्ज़ की मानी, उसकी साख्त, उसकी बनावट, उसको मुख्तलिफ पहलुओं से जांचता है। किसी लफ्ज़ को जो भी ज़ुबानदान जांचता है, भाई इसके मानी क्या है, क्या ये मुरक्कब है, क्या ये किसी ज़ुबान से माखूज है, ये किस तरह जो ये बना है, इसके कोई पार्ट्स हैं, एक पार्ट है, दो पार्ट है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि जामिद है, इसमें जामिद की सूरत में है, इसमें मश्तक की सूरत में है, ये किस तरह है। तो ये पहली जो है ना जी, उसकी पहली बुनियादी जुज़ है वो इल्म सर्फ है। दूसरी जुज़ उसकी ये है, दूसरा वो है उसका इल्म नहव, जिसे सेनाटेक्स कहते हैं, सेनाटेक्स। तो सेनाटेक्स जो है वो इल्म नहव को कहा जाता है, और जो है मार्फिमियात की जो पहली जुज़ है जिसे जनाब वाला मार्फोलॉजी कहते हैं, वो इल्म सर्फ है। मार्फोलॉजी और सेनाटेक्स। मार्फोलॉजी से ये मार्फिमियात उन्होंने निकाला। मार्फोलॉजी का मतलब है इल्म सर्फ, यानी लफ्ज़ का इल्म। मार्फोलॉजी को भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो ये दोनों इस्तिलाहात, मार्फिमियात से मुराद मार्फोलॉजी प्लस
सनेटेक्स दोनों, तो यानी सर्फ जमा नाब। ये नहीं है कि मार्फिनियात में सिर्फ मार्फोलॉजी है, इल्म सर्फ है, नहीं, उसका दूसरा जो इल्म नहव भी है जो जुमले के साथ डिस्कस करता है कि जुमला कैसे बनता है। हम 1 2 3 4 लफ्ज जब मिलाते जाते हैं तो वो जुमले हम बनते जाते हैं। सबसे मुख्तसर जुमला 2 लफ्जों का होता है, 2 लफ्जों का होता है। हम कहते हैं आम दो, जाहिर बात है बात तो वाज़ेह हो गई, आम दो, तो आम दो है जी, जुमला मुकम्मल हो गया। जब हम ये कहते हैं 2 आम दो, तो मजीद ये जुमला बेवसअत अख्तियार कर गया, फलाने को 2 आम दो, फलाने से फलाने को 2 आम तोल कर दो, तो जुमला बढ़ता चला जा रहा है। मुख्तसर तरीन 2 अल्फाज के ऊपर जुमला मुकम्मल हो जाता है। इससे आगे बहुत से अल्फाज जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें 3 अज्जा बुनियादी तौर पर ज़रूर होते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है जुमले में जो मुकम्मल जुमला होता है उसमें फ़ाइल है, मफूल है और फ़ेल है, इमदादी फ़ेल भी होते हैं उर्दू में। तो इस तरह जुमला जो है वो काबिल तफ़हीम होता है और जो है उसकी तकमील होती है। और इन जुमलों की साख्त को देखा जाता है। हर ज़ुबान में जुमलों की बनावट एक दूसरे से आम तौर पर या तो मिलती जुलती है या मुख्तलिफ है। अब ये ज़ुबानों की ख़ानदान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। जो माहिर लिसानियात ने ज़ुबानों के ख़ानदान जो है वो बनाए हैं, आप लोग इसको गूगल के ऊपर अगर देखना चाहें तो ये ज़ुबानों के ख़ानदान बाकायदा जो है वो बनाए हुए, उनमें 13-14 ख़ानदान बनाए, बल्कि अब तो ज़्यादा भी उन्होंने बना लिए। उनकी बाकायदा ट्री बनाई हुई है कि किस तरह ये डेवलप हुए शुरू से ही। प्रोटो लैंग्वेजेस प्रोटो लैंग्वेजेस प्रोटो लैंग्वेजेस प्रोटो लैंग्वेजेस कौन से हैं? वो ज़बानें जिनसे ये ज़ुबानें बाद में निकल कर जो है मौजूदा सूरत में आई हैं। प्रोटो उनकी किदरी ज़ुबानें थी, उधर से बाद की ज़ुबानें प्रोटो लैंग्वेजेस से लेकर प्रेजेंट लैंग्वेज तक आप ये इनके वो देख सकते हैं। माहिर लिसानियात ने इनका तायुन किया है। तो इस तरह सर्फ व नहव में जिन 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 शाखों से ये ज़ुबानें ताल्लुक़ रखती हैं उनके जुमले की साख्त आमतौर पर मिलती जुलती है। लेकिन किसी और शाख की ज़ुबान अगर हुई तो वो जिस प्रोटो लैंग्वेज से दुनिया में वो ज़ुबान वजूद पजीर हुई तो उसके जुमले की साख्त भी डिफरेंट होगी। मसलन हम जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो ज़ुबानें बोल रहे हैं आमतौर पर सिवाय चंद एक के, तो वो हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस यानी हिंदी और आर्याई। आर्याई का लफ्ज़ कहाँ से निकला? आर्याई का लफ्ज़ ईरान से निकला। ईरान से आने वाले कबाइल जो बोली बोलते थे वस्त एशिया से निकल कर हिंदुस्तान की तरफ माल चराने वाले लोग जब हिंदुस्तान के खित्ते बिलखसूस पंजाब सिंध में दाखिल हुए तो इस इलाके में अपनी ज़ुबान के असरात छोड़ गए। आज हम उसी ज़ुबान की बाकियात के तौर पर आर्या की उस ज़ुबान की बाकियात के तौर पर ये ज़ुबानें बोल रहे हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे सराइकी हो, चाहे हिंदी हो। इनकी जो मदर जो है वो मदर लैंग्वेज वो संस्कृत है, संस्कृत है, वो आर्यों की जुबान थी, वहीं से जाके बना। और इसलिए इनकी इसलिए इनकी जुमलों इसलिए इनकी जुमलों की साख्त एक जैसी नजर आती है। यानी पंजाबी हो या उर्दू हो तो जुमले की जो बनावट है वो एक जैसी नजर आएगी। जुबानों की ताल्लुकदारी को जुमलों की बनावट की बुनियाद पर आजकल परखा जाता है और उनकी रिश्तेदारी को, उनकी ताल्लुक को जो है वो दुनिया के सामने लाया जाता है कि कौन सी ज़बान किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखती है। ये अलग बात है, उसमें ज़ख़ीरा अल्फाज मिलते जुलते बहुत सी ज़ुबानों के आ सकते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत सी ज़ुबानों के आ सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है यानी इल्म नहव है उसकी रूह से जुमले जिस ज़ुबान के साथ बनावट के एतबार से मिलेंगे तो उसको उस ख़ानदान के साथ अटैच किया जाएगा। ये इल्म नहव का काम है कि वो उसको स्टडी करे। लोगों ने बहुत डीप स्टडी की हुई है, हमारा मुतालिया महदूद है। तो जो लिंग्विस्ट हैं बेसिकली जो लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने लिंग्विस्टों को स्टडी किया है वो इसको बड़ी गहराई के साथ बयान कर सकते हैं। हमारे हिसाब में थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा तारुफ के तौर पर ये मैंने बता दिया आपको।
کہ یہ معرفیات میں کیا ہے، یعنی علم صرف اور علم نحو۔ آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جناب شکریہ آپ کا۔ لگا دیا پیارے سر، ہاں بھائی، لگا دیا پیارے سر حاضری لگا دی ہے، حاضری ہماری حاضری آپ کی میں نے لگا دی ہے۔ شکریہ حاضری سر۔ حاضری کے بارے میں آپ فکر نہ سر کریں، آپ نے کب لگائی ہے سر؟ آپ نے، ہم تھے اس وقت نہیں تھے سر۔ ابھی لگائی ہے میں نے، ابھی چلو لگائی چلو ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ میری لگ